تو آج میرے عزیزوں، اگر آپ خدا کی آواز کو سن رہے ہیں تو اپنے دلوں کو بھاری مت کر لیں. سوچیں، چاہے آپ جس ڈینومینیشن سے ہیں، جس مذہب سے ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. آپ سنیں اور اس کی آواز پر غور کریں تاکہ کہیں مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. بلکہ اگر آپ ایمان لے کر آئیں گے تو 1000 سالہ بادشاہی آپ کی ہے، خدا کی بادشاہی آپ کی ہے. آج جس خدا کو آپ نہیں جانتے، وہ خدا آپ کے درمیان آ جائے گا، وہ اتر آئے گا اور وہ آپ کے ساتھ رہے گا. ہاللیلویا. خداوند یہوہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں. تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو بھلا ہے. تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تیری شفقت ابدی ہے اور تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، تیرے میٹھے یسوع نام کے لیے، تیرے پاک روح کے لیے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. تیرا وعدہ ہے کہ تیرا پاک روح ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا. اور خداوند آج بھی ہم تیرے پاک روح کی حضوری کو مانگتے ہیں تاکہ خداوند جب ہم تیرے کلام کو سنیں، تیری میٹھی شیریں آواز کو سنیں، تو اپنے دلوں میں اس کو بٹھائیں اور تیرے کلام کے مطابق ہم زندگی بسر کر کے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں. ہم تیری بادشاہی میں جائیں اور ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں. خداوند تو ہمارے ذہنوں کو، ہمارے کانوں کو اور ہمارے دل کو کھولنا، بلیس کرنا، تاکہ ہم تجھے سن سکیں، تجھے دیکھ سکیں اور اپنے دل میں تیرا تخت لگا سکیں. تیرا خیمہ، تیرا گھر ہمارے دلوں میں بس جائے. یسوع کے جلالی اور میٹھے نام میں آمین. آج میں آپ کو جس ٹاپک کے حوالے سے بتانے والا ہوں وہ ہے فیسٹ آف ٹیبرنیکل. اور یہ فیسٹ آف ٹیبرنیکل، اس کا ٹائٹل ہے اے فور شیڈو آف دا کنگڈم آف کرائسٹ. یہ یسوع مسیح کی بادشاہت کے بارے میں ہمیں کچھ بتاتی ہے. فیسٹ آف ٹیبرنیکل، کتنے لوگ فیسٹ آف ٹیبرنیکل کے نام سے، عید خیام کے نام سے، تمبوؤں کی عید کے نام سے واقف ہیں؟ وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں. اوکے، تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ عید خیام کیا چیز ہے. خیام جو لفظ ہے وہ خیمے سے نکلا ہے. خیمے کا مطلب ہوتا ہے ٹینٹ، تمبو. آپ کو پتہ ہے جب شادی ہوتی ہے تو کیا لگائے جاتے ہیں؟ تمبو. ہاں، اور تمبو جو ہوتا ہے یہ ایک عارضی پلیس ہوتی ہے، ٹیمپریری جگہ ہوتی ہے، تمبو جس کو ہم کہتے ہیں. تو خداوند کی 7 عیدوں میں ایک عید ایسی ہے جس پر لوگ تمبو بناتے ہیں، خیمے بناتے ہیں اور گھروں سے باہر رہتے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہودی لوگ. یہودی لوگ وہ قوم ہیں جو ایک ہی قوم تھی. جب ساری دنیا کے لوگ اپنے انہوں نے دیوتا بنا لیے، بت پرستی شروع کر دی، مورتی پوجا شروع کر دی، تو ایک قوم اس وقت بھی خدا کے ساتھ، یہوہ پرمیشور کے ساتھ وہ اڑی اور کھڑی رہی، اور اس کا نام اسرائیل ہے. لوگ اسے بنی اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں. اور اس کے معجزات، اس کی باتیں، اس کی فتح کلام مقدس میں اور قرآن میں، ہسٹری میں ہر جگہ موجود ہے. اور آج بھی اسرائیل کا نام، یہ چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس کا نام پوری دنیا لیتی ہے. جانتے ہیں لوگ اس کے بارے میں، اس کی طاقت سے واقف ہیں، اس کی بلیسنگ سے لوگ واقف ہیں. اور میرے عزیزو، اسرائیلیوں کو 7 عیدیں خداوند نے کہا تھا کہ تم انہیں منایا کرنا. اور میں کہتا ہوں جب میں نے ان عیدوں کے بارے میں سیکھا تو ایسے راز کی باتیں مجھے پتہ چلی کہ میری عقل دھنگ رہ گئی.
मैं इस्राएली जिनको समझता था यहूदी लोग वो यीशु मसीह को मानते नहीं हैं, लेकिन जब इन ईदों के बारे में मैं देखता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ उनकी बुद्धि, उनकी अकल कहाँ पर गुम गई है कि वो किस तरह से यीशु मसीह को माने बगैर रह सकते हैं। आप ये देखें, खुदावंद ने उन्हें कहा था कि तुम फसह की ईद मनाना, और आप बाइबल पढ़ के देख लें, आप ज्यूइश हिस्ट्री पढ़ के देख लें, उन्होंने जिस दिन वो बकरे को ज़िबा किया करते थे, अपने गुनाहों की कुर्बानी किया करते थे, सेम उसी दिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान देकर अब हमें तमाम कुर्बानियों से आज़ाद कर दिया है। और अगर आज फिर भी हम अपने गुनाहों के लिए कुर्बानी चढ़ा रहे हैं तो हम उसकी कुर्बानी को रिजेक्ट करते हैं और अपने ऊपर गुनाह को लेकर आते हैं। फिर खुदावंद ने कहा कि तुम मेरे लिए बेखमीरी रोटी की ईद मनाया करना, और खुदावंद यीशु मसीह का उसी दिन जिस दिन वो बेखमीरी रोटी की ईद मना रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह का बेगुनाह बदन जिसमें कोई गुनाह नहीं था। और याद रखें, सिर्फ एक ही शख्स है, एक ही मसीहा है, एक ही नबी है जो गुनाह के बगैर है, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उसका बेगुनाह बदन कब्र के अंदर रखा गया। इस्राएली जब ब्रेड बनाते थे तो वो इसी तरह की एक ओवन बनाते थे, इसी तरह की सेम जिस तरह की वो कब्र बनाते थे, और वहाँ पर वो आटे को गूंद कर रख देते थे और बाद में निकालते थे तो वो रोटी बन जाता था। और इसी तरह कब्र, हमने यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह को कब्र को देखा है, वो सेम ऐसे अंदाज की बनी हुई है। फिर जिस दिन वो पहले फलों की ईद मनाते थे, पहले फल जब उनकी फसलों में पहले फल आते थे तो वो उसे खुदा के हुजूर लहलहाते थे और कहते थे, खुदावंद ये मैं तेरे घर में लेकर आया हूँ। और यीशु मसीह उसी ईद के दिन जो यहूदी लोग मना रहे थे, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और पौलुस रसूल क्या कहता है उस दिन के बारे में? कहता है, आओ हम भी ईद मनाएं, क्योंकि हमारा भी बर्रा ज़िबा हुआ है। और वो कहता है कि हमारा मसीहा मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहला फल ठहरा। मुर्दों में से, ये भी याद रखें, आज तक कोई जिंदा नहीं हुआ, सिर्फ वो भी यीशु मसीह है जो मुर्दों में से जी उठा। और मुर्दों में से जी उठने वालों में से वो पहला फल ठहरा। और ये किस दिन हुआ? जब यहूदी पहले फलों की ईद मना रहे थे। उसके बाद पेंतीकोस्त की ईद यहूदी इसलिए मनाया करते थे, खुदा ने कहा था उन्हें मनाने के लिए, वो इसलिए मनाया करते थे क्योंकि इस दिन उन्हें 10 हुक्म मिले थे। शरीयत, जो शरीयत की किताब है जो मूसा ने लिखी, इस दिन उनको मिली, और वो इस दिन को एक ईद के तौर पर मनाया करते थे क्योंकि खुदा ने कहा था कि इसे मनाया करना। और जिस दिन वो ईद मना रहे थे तो आपको पता है पेंतीकोस्त के रोज क्या हुआ? उन्हें आग के शोलों की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनके ऊपर आकर ठहर गईं, और वो सब रूहुल कुद्दस के बपतिस्मे से भर गए। हालेलुया। और गैर जुबानें बोलने लगे। तो ये थी तकमील पेंतीकोस्त की। तो खुदावंद यीशु मसीह इन ईदों को एक एक करके पूरा करता चला आ रहा है। और आज हम कलीसिया के दौर में शामिल हो चुके हैं। आज ये दौर किसका है? कलीसिया का दौर है, चर्च का दौर है। और मेरे अजीजों, अभी ये 3 ईदें बाकी वो पूरी होने वाली हैं। अगली ईद जो यहूदी मनाते हैं, लेकिन वो कैसे पूरी होगी कौन जानता है? जब मसीह की कलीसिया उठा ली जाएगी। ये इवेंट इस बात को जाहिर करता है, नरसिंगे, याद है ना, आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे और बाकी हम जो जिंदा हैं बदल जाएंगे। और बदल के क्या करेंगे? हवा में उड़कर उसका
इस्तकबाल करेंगे, और इस चीज को कहते हैं रैप्चर हो जाना, मसीह की कलीसिया का उठाया जाना। इसलिए इन ईदों के ऊपर राज है मेरे अजीजों, और उस राज को जानने के लिए आपको हम्बल होकर सीखना पड़ेगा। फिर कुफारे की ईद। कुफारे की ईद समझे क़यामत का दिन है, अदालत का दिन है। और ये यहूदी 4500 साल से वो इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं। किस प्रैक्टिस को? कफारे की ईद को। उसमें वो रोज़ा रखते हैं, उसमें वो अपने पापों से माफ़ी मांगते हैं, ताकि जब अदालत का दिन आए तो उस वक़्त उन्हें भुगतना ना पड़े। तो मेरे अजीज़ों, क़यामत का दिन बहुत खौफनाक है, डरावना है, दर्द वाला है, तकलीफ़ों वाला है। और उस दिन अटोनमेंट की ईद में खुदावंद आएगा और जो जालिम हैं, जो बेईमान हैं, जो आज विश्वास नहीं करते, उन सब का इम्तिहान होगा, अदालत होगी, और फिर मुश्किलात का दिन आएगा। और अगली ईद है खैमों की ईद, जिसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। खैमों की ईद में खुदावंद आसमान से उतर आएगा और वो हमारे दरमियान रहेगा। उसकी हैकल, उसका टेंट हमारे दरमियान रहेगा। खुदा इंसान के साथ फाइनली मिलाप कर लेगा, और फिर इंसान और खुदा दोनों इकट्ठे रहेंगे। ये है टैबरनेकल की ईद। आप ये देखें कि नरसिंगों की ईद जो है वो तिशरी महीना, जो कि बाइबल के मुताबिक 7वां महीना है, उसकी पहली तारीख को नरसिंगों की ईद मनाई जाती है। और उस तिशरी की 10वीं तारीख को कफारे की ईद मनाई जाती है। और उसके बाद 15 तारीख जब आती है तो उस वक़्त खुदा कहता है कि तुम कौन सी ईद मनाया करना? खैमों की ईद मनाया करना। और ये 1 हफ्ता 1 वीक के लिए चलेगी, और हर बात जुड़ी हुई है एक चीज़ के साथ, और वो है खुदावंद की 1000 साला बादशाही के साथ, नए यरूशलेम के साथ। हर एक चीज़ लिंक है। अभी मैं आपको बताता हूं कि इस्राएल में पिछले वीक में ये ईद मनाई गई है। मैंने उस प्रोग्राम को देखा, बड़ी दुनिया के लोग आए, हर एक ने अपना अपना झंडा पकड़ा हुआ था, और वो इस्राएल में उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया। एग्जैक्टली वो खैमे बनाते हैं, वो खैमों के अंदर रहते हैं 1 वीक के लिए। तो क्या करते हैं इस्राएली? वो इरादा कर लेते हैं, आज हमने इस हफ्ते में हमने घरों में नहीं रहना, और बाहर टेंट लगाने हैं, खैमे लगाने हैं, और अपनी कोठियां छोड़कर, अपने अच्छे अच्छे घरों को छोड़कर वो टेम्परेरी घरों में रहते हैं। हम देखेंगे कलाम मुकद्दस हमें क्या बताती है कि हमने इस ईद को किस तरह से मनाना है, या यहूदियों ने इस ईद को किस तरह से मनाना है। ये ईद हमें ये भी बताती है कि हमें इस दिन खुदा के हजूर शुक्रगुजारी के नजराने पेश करने हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि हम एक हवाला पढ़ें, एक्सोडस 34 बाब उसकी 22वीं आयत। और तू गेहूं के पहले फल के काटने के वक्त हफ्तों की ईद और साल के आखिर में फसल जमा करने की ईद मनाना। तो ये जो ईद आखिर में मनाई जा रही है, ये फसल जमा करने वाली ईद है। और आपको पता है मुकाशफा की किताब में जब फसल को इकट्ठा किया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अदालत है कि अब फसल को इकट्ठा करना है, और जो भूसा है उसका क्या करना है? उसे आग में जलाना है। ये अदालत का दिन है। अच्छे अच्छे खुदा ले लेगा, और जो निकम्मे हैं उनको आग में जला दिया जाएगा। तो ये ईद उसके लिए थी, फसल के इकट्ठा करने की ईद। मुकाशफा की किताब अगर आपने पढ़ी है तो इस बात की आपको पूरी पूरी समझ आ जाएगी।
اگر آپ نے اس کے بارے میں مزید سیکھنا ہے تو آپ حوالے لکھ سکتے ہیں، گنتی 29 باب اس کی 12 سے 40 آیت، استشنا 16 باب اس کی 13 سے 17 آیت، عزرا کی کتاب اس کا 3 باب کی 4 آیت، اور احبار یعنی لیویٹیکس اس کے 23ویں باب کی 33 ورس سے لے کر 44 ورس تک اس عید کے بارے میں بتایا گیا ہے اور گہرا مقصد بتایا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم احبار 23واں باب اور اس کی 33ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں۔ احبار کہتے ہیں لیویاں پنجابی میں، اور اس کا 23واں باب اور اس کی میں 33 آیت سے پڑھتا ہوں۔ غور سے سنیے گا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ اسی 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے لے کر 7 دن تک خداوند کے لیے عید خیام ہوگی۔ اور عید خیام میں کیا کرنا ہے؟ خیمے لگا کر رہنا ہے۔ آگے، پہلے دن مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اس دن چھٹی کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ تم 7ویں دن برابر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزارنا، آگ کی قربانی گزارنا۔ 8ویں دن تمہارا مقدس مجمع ہو اور پھر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزارنا، وہ خاص مجمع ہے، اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کر۔ یہ پریکٹس ہے کہ 6 دن تم کام کرو اور 7ویں دن آرام کرو۔ اور یہ عید خاص آرام ہے جس میں 1 دن کا آرام نہیں بلکہ 1000 سال کا آرام ملنے والا ہے اس عید کے اوپر۔ آگے لکھا ہے، یہ خداوند کی مقررہ عیدیں ہیں جن میں تم مقدس مجمعوں کا اعلان کرنا، تاکہ خداوند کے حضور آتشی قربانی اور سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور ذبیحے اور تپاون ہر ایک اپنے اپنے معین دن میں گزرانے گا۔ خداوند نے کہا اس دن تم ہدیے لے کر آنا، قربانیاں لے کر آنا، شکر گزاری کرنا کہ خداوند نے تم کو اچھے اچھے گھروں میں رکھا ہے۔ ہاللیلویہ، یہ مقصد تھا۔ آگے 39ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے جب تم زمین کی پیداوار جمع کر چکو تو 7 دن تک خداوند کی عید منانا۔ پہلا دن خاص آرام کا ہو اور 8واں دن بھی خاص آرام ہی کا ہو۔ خاص آرام، سبت کا آرام، 1000 سالہ بادشاہی کا آرام، یہ بار بار بات ہو رہی ہے۔ تو 6000 سال اس دنیا کو بنے ہو چکے ہیں اور اب خداوند یسوع کی 1000 سالہ بادشاہی آنے والی ہے۔ سو تم پہلے دن خوش نما درختوں کے پھل، کھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کے بید مجنو لینا، اور تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا۔ مختلف پھل، مختلف درخت، ونڈرفل، جن کے پتے کبھی نہیں مرجھاتے اور جن کے پھل خوشنما ہے اور جو ندیوں کے کنارے لگے ہوئے ہیں، یہ ساری باتیں کہاں سے ملتی ہیں آپ کو؟ کہاں پر ملتی ہیں؟ مکاشفہ میں۔ ہاللیلویہ۔ تو اشارہ سمجھیں، اشارہ 1000 سالہ بادشاہی کی طرف ہے میرے عزیزوں، 1000 سالہ بادشاہی کی طرف۔ تو یہ خیموں کی عید جو یہودیوں نے پچھلے ہفتے میں منائی، یہ مسیحیوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ اس عید پر فوکس کریں، غور کریں، اور پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کلام بدل چکا ہے، آپ پھر یہ کہیں گے میری آنکھیں بند تھی۔ اور یہ سب کچھ بتا رہا ہے، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی باتیں میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور یہ ساری نیو ٹیسٹمنٹ میں مکاشفہ میں ون ٹو آل پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور تم ہر سال خداوند کے لیے 7 روز تک یہ عید مانا کرنا،
तुम्हारी नस्ल दर नस्ल सदा यही आइन रहेगा कि तुम 7वें महीने इस ईद को मानो। 7 रोज तक बराबर तुम सायबानों में रहना। सायबान क्या है? खैमों में रहना, तंबुओं में रहना, ताकि तुम्हारी नस्ल को मालूम हो कि जब मैं बनी इसराइल को मुल्के मिस्र से निकाल कर ला रहा था तो मैंने उनको सायबानों में टकाया। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। सो मूसा ने बनी इसराइल को खुदावंद की मुकर्रर ईदें बता दी। वजह क्या थी इन ईदों को मनाने की? ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम कहां से निकले हो, तुम्हें याद रहे कि तुम्हारे बाप दादा साहिबानों में रहे हैं, टेंटों में 40 साल तक रहे हैं, ये याद रहे। पता है विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? अ नेशन दैट फॉरगेट इट्स पास्ट हैज नो फ्यूचर। एक कौम जो अपना माजी भूल जाती है उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। याद रखें इस बात को। तो खुदा उनको याद दिलाता है। हर एक चीज लिंक है मेरे अजीजों। और कलाम, खुदा के कलाम के लिए अपनी आंखों को खोलें। ऐसे नहीं हो यहूदी मना रहे, ऐसे नहीं मानते जी। सोचें, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, उस पर गौर करें और गहरी बातें आपको नजर आएंगी। इसका यह भी मतलब है कि अपने आप को हमने हम्बल करना है। अपने पत्थर के खूबसूरत घरों को जो बने हुए हैं उनको छोड़कर हमने सादा घरों में रहना है। और इसका यह भी मतलब है कि हमने खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी अदा करनी है, कुर्बानियां देनी है, लोगों को खाने में शामिल करना है। मैं आपको बताऊं, अमेरिका की बरकत का, तरक्की का, सुपर पावर होने का एक राज ये भी है। वो एक दिन इन दिनों में मनाते हैं, थैंक्स गिविंग। आप यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करके देखें, थैंक्स गिविंग के नाम से वो एक दिन मनाते हैं। और इस दिन वो गरीबों को, दूसरों को, सब आपस में फैमिली वाले लोग मिलकर खाना खाते हैं इकट्ठा और याद करते हैं खुदावंद की ब्लेसिंग्स को। और वो बहुत सारी जो डोनेशंस है वो दूसरे मुल्कों में भेजते हैं। और ये उनकी बरकत का एक बहुत बड़ा राज है। और उन्होंने डॉलर पे पता है क्या लिखा हुआ है? इन गॉड वी ट्रस्ट। हमारा भरोसा किस पर है? खुदा पर है। हम उन्हें सिर्फ दुश्मन की निगाह से ना देखें। आज अगर वो सुपर पावर है तो उसके पीछे रीजन को देखें। सिर्फ ये गुस्सा कर लेना ओ मसीही ने या वो ज्यूज हैं, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है मेरे अजीजों। आप सोचें कि अगर वो यहूदी पावरफुल हैं तो क्यों हैं? अगर मसीही सुपर पावर हैं तो वो क्यों हैं? आज अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप सारा ये ब्लेस्ड हैं और यहां पर आकर हम रहना चाहते हैं तो इसकी वजह क्या है? यीशु मसीह है। हालेलुया। इन बातों को गौर से सुने, दिल को ठंडा करके, दिमाग को हम्बल करके। शैडो, ये ईद एक शैडो है मेरे अजीजों। खैमों की ईद हमें कुछ बताती है। और 2 चीजों के बारे में खास तौर पर मुझे नजर आता है, यीशु की पहली आमद और यीशु की दूसरी आमद के बारे में, उसकी फर्स्ट कमिंग के बारे में और उसकी सेकंड कमिंग के बारे में। फर्स्ट कमिंग जब हुई तो यीशु मसीह कहां पर पैदा हुए? कौन बताएगा? चरनी में। कहां पैदा हुए? चरनी में। और चरनी पता है क्या होती है? को वो कोई घर नहीं होता। उस रोज वो ईद मना रहे थे और वहां पर जगह नहीं थी, सराओं में, होटल्स में जगह नहीं थी। तो उन्हें जगह कहां पर मिली? जब यीशु मसीह के पैदा होने का वक्त आ गया, मुकद्दसा मरियम हामला थी और जब क्या उसे कहते हैं वज़ा हमल का वक्त आ गया, डिलीवरी का वक्त आ गया, तो वो जगह ढूंढ रहे थे लेकिन ईद की वजह से वहां पर जगह ना मिली तो वो एक चरनी में गए। चरनी एक खैमा होता है जहां पर जानवरों को रखा जाता है, एक टेम्परेरी जगह। और वहां पर यीशु मसीह पैदा हुए। सुक्का
اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس عید کا نام بھی سکات ہے، تو یس لنک ہے، خیمہ ہی تھا جہاں پر یسوع مسیح اپنی پہلی آمد میں آیا، اور جب وہ آتا ہے تو معجزات کے ساتھ آتا ہے۔ میرے عزیزو، اس نے لوگوں کی آنکھوں کے آنسو پونچھ ڈالے۔ ایک ماں تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی مر گیا، وہ بیوہ تھی، وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، اور وہ میرا مسیحا جس مقصد کے لیے آیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے اس لاش کو، اس لوگوں کو کہتا ہے روکو، اس کو یہاں پر ٹھہراؤ، اور مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور پتہ ہے وہاں پر لوگ کیا کہنا شروع ہو گئے؟ لوگوں نے کہا God has visited us، خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے۔ وہاں پر وہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ خداوند ہمارے پاس آ گیا ہے، کیونکہ ایسا کام کوئی انسان کر نہیں سکتا، تو خدا ہمارے پاس آ گیا ہے۔ کلام کہتا ہے، آپ اس معجزے کو پڑھیں، لوگ یہی کہتے ہیں خداوند ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ اور اس کی دوسری کمنگ میں بھی کیا ہوگا؟ خدا انسان کے درمیان آ جائے گا، وہ ان کے ساتھ رہے گا، جیسے یسوع مسیح 2000 سال پہلے انسانوں کے ساتھ رہا، اسرائیل میں رہا، پھر خدا ہمارے ساتھ 1000 سال تک رہے گا۔ ہاللیلویا۔ ہم پڑھیں گے مکاشفہ 21 باب، اس کی پہلی 4 آیتیں میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور ایک نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا۔ ایسا شہر، نیا یروشلم آسمان سے اترتا ہوا دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا، سجا ہوا تھا، کس کی طرح؟ دلہن کی طرح، جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خداوند کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ ہے خدا، خیموں کی عید ہمیں اس کے بارے میں اشارہ دے رہی ہے۔ خیموں کی عید بتاتی ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ سنیے، پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خداوند کا خیمہ، خداوند کا تمبو آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ صرف بیوہ کے آنسو نہیں، بلکہ پوری قوموں کے آنسو ہمارا خدا پونچھنے والا ہے۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ کوئی موت نہیں، کوئی دکھ نہیں، درد نہیں۔ اور یہ کام یسوع مسیح نے اپنی پہلی آمد میں مسیحیوں کے لیے کر دیا ہے۔ شیطان کا ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے۔ پہلی آمد میں خداوند یسوع مسیح نے 3 دشمنوں کو شکست دی تھی۔ پتہ ہے وہ 3 دشمن کون سے تھے؟ اس نے گناہ کو شکست دی، اس نے شیطان کو شکست دی، اور اس نے موت کو شکست دی۔ ہاللیلویا۔ کیسے گناہ کو شکست دی؟ کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا، ایک بھی نہیں تھا۔ اس نے شیطان کو ہرایا۔ جو پروفیسی اس کے بارے میں کہی گئی تھی کہ ابلیس تو اس کے پاؤں کو کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا، اور یسوع مسیح نے ایسا ہی کیا۔ صلیب کے اوپر شیطان نے اس کے پاؤں کو کاٹا اور اس نے شیطان کے سر کو کچل دیا، اور وہ موت پر اس نے فتح پائی، اور تیسرے دن وہ جی اٹھا۔ ہاللیلویا۔ تو یہی باتیں آپ کو 1000 سالہ بادشاہی میں عدالت کے دن
क़यामत के रोज़ यही बातें मिल रही हैं। वो हमारी आंखों के सब आंसू पूछ देगा, फिर ना मौत रहेगी, ना दुख, ना दर्द, ना आहो नाला। मैं आपको एक बात और बताता हूं कि दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है, और याद रखें इस्राएल को दुनिया की कौमें घेरने वाली हैं। एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाकया जिसमें पूरी दुनिया मुलव्वस होगी वो हो जाएगा। और देखें कि जकरिया नबी इस इवेंट के बारे में क्या लिखता है। आप निकाले जकरिया 14 बाब उसकी 16 से 17 आयत तक मैं पढ़ता हूं। और यरूशलेम से लड़ने वाली कौमों में से जो बच रहेंगी, सारे नहीं मारे जाएंगे, उसमें से कुछ बचाए भी जाएंगे। और यरूशलेम की कौमों से लड़ने वालों में से जो कौमें बच रहेंगी, साल ब साल बादशाह रब्बुल अफवाज को सजदा करने और ईदे ख़याम मनाने को आया करेंगी। हालेलुया। तो खैमों की ईद 1000 साला बादशाही में भी मनाई जाएगी। और आगे सुनिए, जो कौमें नहीं आएंगी उनका हाल क्या होगा। और दुनिया के उन तमाम कबाइल पर, कबीलों पर, उम्मतों पर जो बादशाह रब्बुल अफवाज के हजूर सिजदा करने को यरूशलेम में ना आएंगी, उन पर मींह ना बरसेगा। खुदा के कलाम में लिखा है वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा। याद रखें। तो इसलिए आज सोचने का वक्त है, खुदा के कलाम पर गौर करने का वक्त है। ये एक्सक्यूज कुछ भी नहीं है कि कलाम बदल चुका है। बताइए, ढूंढिए कि क्या बदल चुका है, किसने बदला, क्यों बदला। अगर आप कल के अखबार को बदल नहीं सकते तो कलाम को बदलना कभी भी मुमकिन नहीं है। और आखिरी सवाल, पता है ये ईद, खैमों की ईद जो है वो कब पूरी होगी, तकमील हो जाएगी। जैसे हमने पढ़ा कि जब फसा की ईद कैसे पूरी हुई, जब यीशु मसीह ने अपनी ही कुर्बानी कर दी। नरसिंगों की ईद कैसे पूरी हुई, जब मसीह की दुल्हन, उसकी कलीसिया उठा ली जाएगी। कफारे की ईद कैसे पूरी होगी, जब वो दुनिया का अदालत करने के लिए आएगा। खैमों की ईद कब पूरी होगी? हालेलुया, हालेलुया। जब उसका खैमा हमारे दरमियान आ जाएगा, जब वो खुद हमारे दरमियान रहेगा, फिर आसमान और ज़मीन एक हो जाएंगे और पहले वाली ज़मीन जाती रहेगी। क्योंकि जंगों ने, ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और फिर नया सब कुछ बनेगा। एक हवाला मैं आपके लिए पढ़ता हूँ और उसके बाद हम आज की बाइबल स्टडी को ख़त्म कर रहे हैं। निकालिए मुकाशफा 20 बाब और उसकी पहली 6 आयतें हम पढ़ते हैं। फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह गढ़े की कुंजी थी। पाताल की कुंजी उस फरिश्ते के हाथ में थी और एक बड़ी जंजीर भी थी उसके हाथ में, फरिश्ते के हाथ में। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को, जो अबलीस और शैतान है, पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अथाह गढ़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। इसके बाद ज़रूर है कि थोड़े अरसा के लिए खोला जाए। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। एक वक्त आने वाला है जब मुखालिफ मसीह आपको कहेगा कि छाप लो, यीशु मसीह का इनकार करो, नहीं तो तलवार आपके ऊपर है। तो ये प्रभु खुदावंद उनके बारे में बता रहा है कि इन्होंने उसकी छाप अपने हाथों पर, माथे पर नहीं ली तो क्या होगा। और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की, ना उसके बुत की,
और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए, बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो, क्योंकि ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। हालेलुया। 1000 बरस तक बादशाही। अब चॉइस आप लोगों के हाथ में है। आप मसीह के साथ 1000 साल बादशाही में शामिल होना चाहते हैं कि अपने प्राइड में रहना चाहते हैं? और आज के कलाम को बस इसीलिए रद्द कर देंगे कि एक मसीही ने सुनाया है और बाइबल बदल चुकी है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। अदालत के रोज खुदा यही चेहरा जो आज आप देख रहे हैं, वो उस दिन भी दिखाएगा और कहेगा, सुन, ये मेरा बेटा चीख चीख कर कह रहा था और तूने उस वक्त इनकार किया, तूने नहीं सुना, तो आज मेरे पास तेरे लिए कोई रहम नहीं है, क्योंकि उस दिन तूने मेरी आवाज़ को सुना और तुमने इग्नोर किया। तो आज मेरे अजीजों, अगर आप खुदा की आवाज़ को सुन रहे हैं तो अपने दिलों को भारी मत कर लें। सोचें, चाहे आप जिस डिनोमिनेशन से हैं, जिस मज़हब से हैं, आप कोई भी हैं, आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आप सुने और उसकी आवाज़ पर गौर करें, ताकि कहीं मुश्किल का सामना ना करना पड़े। बल्कि अगर आप ईमान लेकर आएंगे तो 1000 साल बादशाही आपकी है, खुदा की बादशाही आपकी है। आज जिस खुदा को आप नहीं जानते, वो खुदा आपके दरमियान आ जाएगा, वो उतर आएगा और वो आपके साथ रहेगा। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे मसा के लिए, तेरे जोर के लिए, तेरे पाक रूह के लिए। ओ खुदावंद, तू अपने लोगों को आज़ाद कर, फतह दे, कामयाबी दे, हिम्मत दे। खुदावंद, वो सारी अपनी अकड़ को, अपने प्राइड को वो एक साइड पर रखकर वो तेरी आवाज़ को पहचान लें, वो तेरे कलाम पर यकीन करें। वो कलाम जो तेरे बंदों मूसा और तेरे बंदे नबियों के ज़रिए से, और खुदावंद तेरे बंदा दाऊद के ज़रिए से और तेरे खादमों के ज़रिए से हम तक पहुंचा, तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से हम तक पहुंचा। आज हम उसको इग्नोर ना करें, बल्कि उस पर गौर करके खुदावंद हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। खुदावंद, आज हम जितने भी तेरे लोग यहाँ पर हैं, तो हमें बड़ी फतह और कामयाबी देना, अपने पाक रूह से भरना और रूह का ताज़ा मसा और ताज़ा जोर देना, यीशु के नाम में, आमीन। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया। ראיתי את זה בטלוויזיה.
Hannah. Hannah? There was a lady at the bus stop that was like, "Are you okay?" The Orthodox Jews are like, We love you. Shalom. יאללה, אני מלמד. Let's still go down here to go, babe. Familia, Ecuador, por acá. New Zealand. That's the man. I wanted to let you know. Tomorrow is Where are you staying? Oh, hey! You! You YouTuber? Oh, sorry. We love you. I love you, Brazil, yes, I have. Dei tudo. Aqui, ó. We love you guys. Ah. Bunun nasıl ne? Benziyor öyle.